Assalamu alaikum students. Welcome to your maths lecture of class 9. Students, today we are going to discuss the exercise 4.2. Before going to discuss that exercise, students, let's have a look some important formulas which is used in this exercise. The first one is a plus b whole square plus a minus b whole square equals to 2 into bracket a square plus b square. Second formula is a plus b whole square minus into bracket a minus b whole square equals to, that is equal to 4ab. The third one is bracket a plus b plus c whole square equals to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. The fourth one is a plus b whole cube equals to a cube plus cab into bracket a plus b plus b cube. The fifth one is a minus b whole cube equals to a cube minus 3ab into bracket a minus b bracket close minus b cube. The sixth one is a cube plus b cube equals to a plus b into bracket a square plus ab plus b square. The seventh one is a cube minus b cube, which is equals to a minus b bracket close into bracket a square minus ab plus b square. Very first question of exercise 4.2 is, if a plus b equals to 10 and a minus b equals to 6, then find the values of a square plus b square. So students, let's have a look to solve this question. Now students, here we are going to solve the first question. First of all, we write here the given data, and the given data is the value of a plus b is given, which is 10, and a minus b, this is equals to 6, and we will find a square plus b square. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने फाइंड करना है. सबसे पहले स्टूडेंट्स, इसके लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा है, आपको वो फार्मूला याद होना चाहिए. डेट इज़ ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. हमने कोई ऐसा फार्मूला ढूंढना था जिसमें ए प्लस बी ए माइनस बी यूज हो. So we got it, a plus b whole square plus a minus b whole square equals to 2 a square plus b square. So students, this is the formula. अब हम वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे. a plus b की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, 10. अकॉर्डिंग टू फार्मूला 10 of whole square plus the value of a minus b is 6. 6 of whole square equals to 2 फार्मूले का लगेगा, और a square plus b square हमने फाइंड करना है. सो ये एज इट इज़ हम लिखेंगे. अब 10 का स्क्वायर क्या होता है, दिस इज इक्वल टू 100 प्लस 6 टाइम्स 6 इज 36 इक्वल्स टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा. तो स्टूडेंट्स, आप ये देखिए कि यहाँ पे सबसे पहले हमने 100 प्लस 36 कर देना है. तो सबसे पहले हम 100 में ऐड कर देंगे 36 को. सो वी गेट 136, और राइट साइड पे मेरे पास 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो स्टूडेंट्स, एज यू नो वेरी वेल, मैथ्स का एक रूल है, अगर हमारे पास एक चीज़ एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाती है. अब 2 यहाँ पे इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब 2 का हमने यहाँ पे जाके 136 के नीचे डिवाइड कर देना है. सो 136 ओवर 2 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को फाइंड करना था और इसको सेपरेटली हमने लेके चलना है. सो बाय कटिंग 2 इंटू 136 और डिवाइडिंग वी गेट 68 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि हमने फाइंड करना था. नाउ कम टूवर्ड्स द अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 इज, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 45 and a plus b plus c equals to -1, then find the value of ab plus bc plus ce. So let's start to solve this question students. सबसे पहले students, इस question का हम given data लिखेंगे. We have a square plus b square plus c square equals to 45, and we have a plus b plus c, the value of this is -1, and we will calculate AB plus BC plus CA, which we will find out. So हमने कोई ऐसा फार्मूला देखना है जिसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आता हो और a प्लस बी प्लस सी आता हो. सो यस, वी हैव
फार्मूला डेट इज़ ए प्लस बी प्लस सी। आपको फार्मूलाज पहले याद रखने पड़ेंगे, तब आपको इन क्वेश्चंस की जो है वो अच्छी समझ आ जाएगी। प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सो स्टूडेंट्स, इसके लिए आप ये देखते हो कि आपके पास जो वैल्यूज़ हैं, आप उसके बाद ये वैल्यूज़ पुट करते हो। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपके पास -1 है। सो वी पुट हेयर -1 होल स्क्वायर equals to the value of a square plus b square plus c square is 45 plus 2 ab plus bc plus ca as it is हम लिखेंगे। अब -1 का होल स्क्वायर इज 1 equals to 45 plus 2 ab plus bc plus ca हम एज इट इज़ लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्या होगा कि 45 यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे 1 के साथ जाके माइनस हो जाएगा। 45 को लेफ़्ट साइड पे ला के 1 के साथ हम माइनस कर देंगे, और यहाँ पे मेरे पास जो है वो 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए एज इट इज़ रहेगा। 1 माइनस 45 इज़ 44 माइनस 44 क्योंकि 45 के साथ माइनस है, इक्वल्स टू एज इट इज़ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए एज इट इज़ हम लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स सेम वही रूल जो फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि 2 जो है वो इस पूरी जो फॉर्म है इसके साथ हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब यहाँ पे हमने सेपरेट करना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को, तो यहाँ से 2 को हम रिमूव करके 44 के नीचे ला के डिवाइड कर देंगे क्योंकि यहाँ पे इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे बी सी प्लस सी ए एज इट इज़ रहेगा। सो बाय कटिंग 2 इंटू 44 इज़ 22, so minus 22 is the final result of AB plus BC plus CA, which is the value of this form. So this is all about the question number 2. Now come towards the next question. Students, this is the solution of this question. Now come towards the another question, that is if x square plus y square plus z square equals to 78 and xy plus yz plus z of x equals to 59, then find the value of x plus y plus c. So let's have a look students. First of all students, हम यहाँ पे जो given data है हम वो लिखेंगे. We have the value of x square plus y square plus z square which is equals to 78, and the value of xy plus yz and plus z of x equals to 59, and the value of x plus y plus z which we will calculate it. So सबसे पहले तो हमने फार्मूला देखना है कि कौन से फार्मूले में ये हमारे पास ये वैल्यूज़ जो हम फाइंड कर सकते हैं। तो हमने एक फार्मूला भी पढ़ा है कि x प्लस वाई प्लस जी होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जेड ऑफ एक्स। सो यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर तो हमें नहीं मालूम, तो ये एज इट इज़ रहेगा। ये वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है, और हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की, जेड इज़ 78 प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स टू 59, सो वी पुट हेयर। सो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम यहाँ पे फाइंड करेंगे कि हमारे पास जब हम 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 59 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 118 आता है। अब नेक्स्ट स्टेप में 78 को हम ऐड कर देंगे 118 के साथ। तो जब 118 के साथ हम 78 को ऐड कर देंगे तो मेरे पास लेफ़्ट साइड पे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर रहेगा, और यहाँ पे
जब 78 को 118 के साथ में ऐड कर दूंगी तो मेरे पास 196 रह जाएगा। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे एक समझने वाला पॉइंट है कि हमने जो फाइंड करना था वो यहाँ पे जो वैल्यू है सिंपल x प्लस वाई प्लस जेड की, बट यहाँ पे स्क्वेयर है। स्क्वेयर को वैनिश करने के लिए स्टूडेंट्स हमने दोनों साइड्स पे, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो मैथ्स का रूल है अगर स्क्वेयर रूट लेना है तो दोनों साइड्स पे लेंगे। तो हम यहाँ पे अंडर रूट ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वेयर इक्वल्स टू अंडर रूट 196 प्लस माइनस के साथ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो स्क्वायर है ये इस अंडर रूट के साथ वेनिस्ड हो जाएगा, तो मेरे पास सिंपल x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं अंडर रूट लेती हूँ 196 का, सो आई गेट 14। अब प्लस माइनस यहाँ पे इसलिए लगा क्योंकि अगर मैं लेट सपोज मैं देखती हूँ कि 14 का अगर मैं स्क्वायर लेती हूँ तो इसलिए मेरे पास 196 आता है। अगेन अगर मैं 14 को इंटू 14 करती हूँ तो मेरे पास 196 आएगा। ये प्लस में कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे प्लस का साइन के साथ है। सिमिलरली अगर मैं -14 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ -14 के साथ, सो आई गेट अगेन 196 बिकॉज माइनस माइनस इक्वल्स टू प्लस। सो दैट्स वाई वी कैन राइट हेयर माइनस के साथ भी 14 का अगर अंडर रूट ले लें, अंडर रूट ऑफ 196 तो 14 बनता है, और प्लस के साथ ले लें तब भी हमारे पास 14 ही बनता है। नाउ कम टूवर्ड्स द अनदर क्वेश्चन। Students, this is the neat notes and solution of question number 4. I hope you understand very well. Now come to the another question. This is a different question from previous question. The first question is question number 6 is, if x plus y equals to 7 and xy equals to 12, then find the value of x cube plus y cube. अब यहाँ पे क्यूब्स के फार्मूले जो है वो यूज़ करके हमने वैल्यूज़ को फाइंड करना है। So let's see. I can write here the given data, that is x plus y equals to 7 and x y equals to xy equals to 12 and the value of x cube plus y cube plus y cube x plus y whole cube equals to x cube plus 3x and y into bracket x plus y bracket close plus y cube. ये फार्मूला स्टूडेंट्स हम यूज़ करेंगे by putting the values x plus y is 7, so 7 whole cube equals to, अब यहाँ पे आप अरेंजमेंट कर लीजिए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब तो आपने फाइंड करना है, और यहाँ पे भी एक्स क्यूब है और यहाँ पे भी वाई क्यूब है। सो ये अरेंजमेंट अगर आप कर लेंगे सीक्वेंस से तो ज़्यादा इजी रहेगा। प्लस 3 एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास हम यहाँ पे पुट करेंगे जो कि है मेरे पास 12, और ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई जो कि है मेरे पास 7। सो बाय पुटिंग वैल्यूज वी गेट दिस फॉर्म। सो 7 को 3 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास 343 बनता है इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एज इट इज़ प्लस 3 into 12, the answer is again multiply by 7 is we get to 52। कांस्टेंट के साथ प्लस माइनस होता है तो मेरे पास जो फॉर्म बनती है वो 343 इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 252 है। तो अब यहाँ पे 252 जो है वो प्लस हो रहा है इस वैल्यू के साथ, तो यहाँ पे आके मेरे पास 343 के साथ माइनस में आ जाएगा। तो मैथ्स का रूल है अगर एक चीज़ एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरे साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी, और अगर डिवाइड हो रही है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, और अगर प्लस हो रही है तो माइनस हो जाएगी, और अगर माइनस हो रही है तो प्लस हो जाएगी। सो 343 माइनस 252 आई गेट 91। वन को ज़रा अच्छा सा लिख लेते हैं। सो इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। So students, this is the value of x cube plus y cube. Before going to another question, firstly see the solution of question number 6.
And the next question is, if x minus y equals to 4 and xy equals to 21, then find the value of x cube minus y cube. Question number 7 is just similar as compared to question number 6, so that's why I come towards the question number 8. सो अब यहाँ पे हमने एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू को फाइंड किया था, ठीक है। सो अब जस्ट यहाँ पे सिंपल एक जो फार्मूला है हमारे पास वो थोड़ा डिफरेंट होगा, बट उसके भी जो साइंस है वो डिफरेंट होंगे। सो लेट्स हैव अ लुक स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन राइट हियर द गिवन डेटा, दैट इज एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 4 and xy equals to 21, and the value of x cube minus y cube ये हमने फाइंड करनी है। The formula for finding is this: x minus y whole cube equals to x cube minus 3 x and y into bracket x minus y minus y cube. So students, by putting the values x minus y, we have 4 equals to, obviously again हम इसको क्या कर देते हैं, एक साथ हम अरेंजमेंट करके लिख लेते हैं, और 3a और एक्स वाई मेरे पास है 21, सो आई कैन पुट हियर, एंड द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई इज 4. सो स्टूडेंट्स 4 की पावर अगर 3 टाइम्स करें तो मेरे पास 64 आता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एज इट इज, माइनस 3 multiplied by 21, and the answer is again multiplied by 4, I get 252. So students 252 यहाँ पे माइनस हो रहा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के साथ, तो क्योंकि हमने एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को सेपरेट करना है, हमने ये फाइंड करना है, सो दैट्स वाई आई कैन ऐड 252 with 64, so I get 64 plus 252 equals to x cube minus y cube. सो जब मैं ऐड कर दूंगी तो मेरे पास जो आंसर बनेगा वो 316 बनेगा, डेट इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब. दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब. Students, solution of question number 8 is this. Now come towards the question number 9. If f 5x minus 64 equals to 13 and this xy equals to 6, then find the value of 125x of cube minus 216y of cube. Students, this question is slightly different as compared to previous question. Now first of all, I can write here the given data. 5x minus 6y equals to 13, and the value of x y equals to 6, and 125 x cube minus 216y cube. This value we can find out. So as we know that students, हमारे पास एक फार्मूला है जिसमें हमारे पास एक्स वाई भी आता हो और ए क्यूब, सपोज कर लेंगे आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ठीक है, और ये है ए माइनस बी. आप इसको लेट कर लें कि आपके पास ये एक्स है और ये वाई है, आप इसको कह सकते हो कि ये आपके पास एक्स माइनस वाई, ओके, क्योंकि एक्स वाई की फॉर्म में एक क्वेश्चन तो एक्स वाई ही कंसीडर करेंगे. तो इसके लिए आपके पास एक फार्मूला जो है एक्स माइनस वाई होल क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स एंड वाई इंटू ब्रैकेट एक्स माइनस वाई क्यूब. तो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया कि आपने सपोज कर लेना है कि एक्स माइनस वाई किसके इक्वल है, 5x माइनस 6y. सो एक्स इज 5x माइनस वाई हमारे पास क्या है 6y है होल क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्या है हमारे पास 5x होल क्यूब माइनस 3 फार्मूले वाला,
एक्स एंड वाई हमारे पास क्या वैल्यू है। अब यहाँ पे आपने देखना है कि आपके पास एक्स क्या है, और एक्स है 5x, ठीक है, और नेक्स्ट वाई है, और वाई की वैल्यू 6y है। ब्रैकेट में है x माइनस वाई, सो x इज़ 5x माइनस वाई इज़ 6y। अगेन आगे माइनस है y क्यूब, तो y आपके पास क्या है 6y, फार्मूले का क्यूब। आपने सपोज़ ये करना था कि आपके पास जो x है वो किसके इक्वल है, x इज़ इक्वल टू 5x, और आपके पास जो y है डेट इज़ इक्वल टू 6y। सो जहाँ जहाँ आपके पास x है, जहाँ जहाँ आपके पास y है, आपने वो वैल्यूज़ उठा के यहाँ पे पुट कर देनी थी इस फार्मूले में। बाद जब करेंगे तो हमारे पास 5x माइनस 6y की वैल्यू जो है वो 13 गिवन है। 13 क्यूब इक्वल्स टू 5 का क्यूब ले लें तो 125 आता है, x क्यूब माइनस नेक्स्ट फॉर्म को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 5 इंटू 3 इंटू 6 इज़ 90, एक्स एंड वाई इंटू ब्रैकेट 13 माइनस 2 1 6, अगर 6 का क्यूब लेंगे हमारे पास ये आ जाएगा। अब जस्ट हमने रीअरेंज करना है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया हुआ था। 13 का अगर हम क्यूब ले लें तो मेरे पास क्या आता है आंसर 2 1 9 एंड 7 इक्वल्स टू 125 एक्स क्यूब माइनस 216 वाई क्यूब, जो कि हमने फाइंड भी करना है। और नेक्स्ट हम एक्स वाई की भी यहाँ पे वैल्यूज पुट कर सकते हैं। एक्स वाई की वैल्यू मेरे पास है 6 और 13 एज इट इज़, सो आई गेट 2197 इक्वल्स टू 125 एक्स की पावर क्यूब माइनस 216 वाई क्यूब। जब मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी 90 into 6 and again 13, so I get 7020। सो अब स्टूडेंट्स 7020 माइनस हो रहा है, यहाँ पे 2197 के साथ आके प्लस हो जाएगा, और 125 एक्स क्यूब माइनस 216 वाई क्यूब एज इट इज़ रहेगा, और मेरे पास आंसर है 9192 and 7. This is the final result of 125 x cube minus 216 y cube. So this is the solution, students, of question number 9. Question number 10 is, if x plus 1 over x equals to 3, then find the value of x cube plus 1 over x cube. So let's have a look, students. Value of x plus 1 over x equals to 3, और हमने फाइंड करना है एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब, ये हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स सेम इसी तरह जैसा प्रीवियस क्वेश्चंस हमने किए हैं सेम वैसे ही करना है, बस सिर्फ ये डिफरेंस है कि यहाँ पे आपके पास जो है वो ए आपके पास एक्स है और बी जो है वो 1 ओवर एक्स है, ठीक है। तो आपने जो फार्मूला डिस्कस किया था वो है मेरे पास ए प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी इंटू ब्रैकेट प्लस बी क्यूब। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप ये देख लीजिए कि आपके पास a जो है वो है x, और आपके पास जो b है वो आपके पास 1 ओवर x है। सो इस फार्मूले में जहाँ जहाँ a आपके पास वहाँ आपने x पुट कर देना है, और जहाँ जहाँ b है वहाँ पे आपने 1 ओवर x को पुट कर देना है। So by putting in this formula, I have x plus 1 over x cube equals to a आपके पास क्या है x है, so x क्यूब आ जाएगा यहाँ पे प्लस 3, a आपके पास क्या है x और b क्या है 1 ओवर x है, ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस बी, a x है और b 1 ओवर x है, प्लस b क्यूब आपके पास क्या है b क्या है 1 ओवर x क्यूब, तो उसका क्यूब आ जाएगा। होगा कि आपके पास ये x और ये x कैंसिल आउट हो जाएगा और वैल्यूज़ पुट कर देंगे। x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू है 3, सो 3 का जो है वो होल क्यूब आ जाएगा इक्वल्स टू x क्यूब
और 1/x³ हम इसको एक साथ अरेंज करके लिख देंगे +3 और x प्लस 1/x की वैल्यू है मेरे पास डेट इज़ गिवन 3। वो नेक्स्ट सिंप्लीफाई कर का क्यूब जो है वो 27 है। यहाँ पे x³ प्लस 1/x³ हमने अरेंजमेंट करके रीअरेंज किया था तो मेरे पास ये आ गया और +3 3 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने x³ प्लस 1/x³ जो फाइंड करना है तो उसको सेपरेट करने के लिए जो प्लस है 9 वो यहाँ पे जाके 27 के साथ माइनस में हो जाएगा। सो 27 माइनस 9 इज़ 18। So 18 is the value of x³ plus 1/x³. Now come to the another question. This is the neat notes of question number 10 and the question number next is 12. Question number 11 exactly same है जैसे हमने question number 10 को डिस्कस किया है। Question number 12 है if 3x plus 1/3 of x equals to 5 then find the value of 23x की पावर क्यूब प्लस 1/27 x की पावर क्यूब। सेम एक्जैक्टली वैसा ही है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किया, बस सिर्फ डिफरेंट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे x की वैल्यू जो वो 3x है और जो b की वैल्यू है वो 1/x है। मींस a की वैल्यू जो वो 3x है और b की वैल्यू मेरे पास 1/3x है। जस्ट वैल्यूज़ डिफरेंट है, बाकी सारा जो है पूरा पैटर्न सेम ही है। गिवन डेटा है हम उसकी वैल्यू लिखेंगे मेरे पास 3x प्लस 1/3x, इसकी वैल्यू है मेरे पास 5 और नेक्स्ट मैंने फाइंड करना है 27x³ प्लस 1/27x³। 1/27x³ जो है इसको फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स इसको फाइंड करने के लिए आप क्या देखते हो कि फार्मूला एक्जैक्टली वही फार्मूला हम जो दोबारा यूज़ करेंगे a प्लस बी का होल क्यूब, डेट इज़ आप ये देखिए a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू a³ प्लस 3ab और ब्रैकेट में है a प्लस बी। सो एंड पे आता है b³। अब जहाँ आपके पास a है वहाँ आपने 3x पुट करना है और जहाँ b है वहाँ पे आपने 1/3x को पुट करना है। सो जब हम पुट कर देंगे तो मेरे पास 3x प्लस 1/3x बनेगा, होल क्यूब ले लेंगे इक्वल्स टू 3x³ आ जाएगा प्लस 3 फार्मूले का, a मेरे पास 3x है और b मेरे पास 1/3x है और a प्लस b डेट इज़ 3x प्लस 1/3x प्लस b³ और b मेरे पास जो है 1/3x है और इसका क्यूब लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगी तो ये मेरे पास कटिंग हो जाएगी और नेक्स्ट में इसकी जो मेरे पास गिवन है वैल्यूज़ वो पुट कर दूँगी। 3x प्लस 1/3 की वैल्यू मेरे पास 5 है, सो 5 होल क्यूब आ जाएगा इक्वल्स टू 27x³ प्लस 3 और 3x प्लस 1/3x की वैल्यू जो है वो 5 है, होल क्यूब आ जाएगा। तो इसके लिए आप क्या देखते हो कि 5 का जब क्यूब लेते हैं तो मेरे पास 125 आ जाता है इक्वल्स टू 27x³ एज इट इज़ है प्लस 15, 5 3 टाइम इज़ 15 प्लस अगर 3x का ये होल क्यूब है तो 3 3 9 9 3 27x³ यहाँ पे आ जाएगा। इस x³ को और इसको मैं कंबाइन एक साथ लिख लेती हूँ क्योंकि मैंने यही फाइंड करना है और इसको मैं रीअरेंज जो है वो कर लेती हूँ 27x³ प्लस 15। अब देखिए यहाँ पे 15 इसके साथ प्लस हो रहा है तो नेक्स्ट स्टेप पे मेरे पास जाके माइनस हो जाएगा 125 के साथ इक्वल्स टू 27x³ प्लस 1/27x³ सेपरेट हो जाएगा। सो 125 माइनस 15 इज़ 110
So this is the value of 27x cube plus 1 over 27x cube. So this is the final result of this question. Question is question number 14. स्टूडेंट्स इसमें हमने फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज मीन्स कि इसके फैक्टर्स बनाने और फैक्टर्स प्रोडक्ट की फॉर्म में होते हैं। तो हमारे पास जो इसका क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई, इसको हमने कुछ रीअरेंज करने के बाद, हमने कुछ कॉमन लेने के बाद इसके हम जो है वो फैक्टर्स मीन्स कि उसको फैक्टराइजेशन में ही कन्वर्ट करना है। माइनस एक्स प्लस वाई इसको फैक्टराइज करना है। अभी तो कोई सूरत नहीं नज़र आ रही इसको फैक्टराइज करने के लिए, बट इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब तो समझ आ रही है, इसको हम लिख सकते हैं। इसका आप होल क्यूब भी इस तरह से लिख लिए, लाइक ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये बन जाता है। अब स्टूडेंट्स प्रॉब्लम यह है कि ना तो ये कोई फार्मूला है, ना इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ना इसके फैक्टर्स बना सकते हैं। तो लास्ट वाला मेरे पास यही हल निकल सकता है कि इसमें से मैं माइनस को कॉमन ले लूँ। जब माइनस कॉमन आ जाता है तो मेरे पास अंदर के साइंस जो है वो सारे डिफरेंट हो जाते हैं। सो एक्स माइनस वाई आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला ओपन हो रहा है। उसका फार्मूला लिखेंगे क्या, एक्स माइनस वाई मीन्स ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर मीन्स एक्स स्क्वेयर। ए यहाँ पे एक्स है और बी यहाँ पे वाई है। सो ए स्क्वेयर प्लस ए बी डेट इज़ एक्स एंड वाई प्लस बी स्क्वेयर, बी इज़ वाई और उसका स्क्वेयर ले लेंगे। और ये वाली सारी टर्म जो है ये हम सेम वैसे ही नीचे उतार लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या देखेंगे स्टूडेंट्स कि हमारे पास मज़ीद हम इसको जो है वो नेक्स्ट सॉल्व कैसे कर सकते हैं कि आप ये देखते हो कि इस पूरी टर्म में हमारे पास जो x माइनस वाई यहाँ पे माइनस के साथ, ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस वाई यहाँ इसके साथ। तो इसका मतलब है कि मेरे पास x माइनस वाई जो है मैं इसको कॉमन ले सकती हूँ। सो कॉमन लेंगे जब हम x माइनस वाई को, तो मेरे पास स्क्वेयर ब्रैकेट में अंदर यहाँ पे जो है वो ये तो बाहर चला गया और सिंपल एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर मेरे पास रह जाता है। और यहाँ पे ये माइनस है और x माइनस वाई ब्रैकेट के बाहर है जो हमने कॉमन लिया हुआ है, और हमारे पास जो है अंदर -1 रह जाता है। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हम कर सकते हैं, ना ही तो इसका कोई फैक्टर बन सकता है, ना इसको जो है वो मज़ीद जो है मैं सिंप्लीफाई कर सकती हूँ। तो फैक्टराइज का मतलब क्या है कि बेसिकली हमने प्रोडक्ट की फॉर्म में लेके आना होता है चीज़ों को, ठीक है। लाइक अगर मेरे पास 12 है तो इसको फैक्टर कैसे बनेंगे, लाइक 4 इंटू 3। तो प्रोडक्ट की फॉर्म में जो भी नंबर्स आए हम कह सकते हैं कि उसके जो हैं वो फैक्टर्स हैं, ठीक है। जैसे 12 है तो इसका फैक्टर जो है 4 इंटू 3 है। तो सेम इसी तरह हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन में प्रोडक्ट की फॉर्म में जो चीज़ आ जाए हम उसको फैक्टर्स या फैक्टराइजेशन जो है उसको कह सकते हैं, ठीक है।